Good morning, students. In the topic of some basic concept of chemistry, today we will study about the balancing a chemical equation. Before this, we have completed till the empirical and molecular formula. And today's our topic is balancing a chemical equation. As you have earlier read in class 10 that we can balance the given chemical equations by hit and trial method or trial and error method. So, according to the law of conservation of mass, a balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on the both side of the element. Let's see. Many chemical equations can be balanced by trial and error method. For example, the reaction of a few metal and non-metals with oxygen to give oxides. Let's see. Reaction is 4Fe when iron that is in solid state plus it reacts with oxygen that is in gaseous state to form its oxide, that is 2Fe2O3, and this one is in solid states. That is equation first. The second one is when magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide, that is oxide of magnesium. That is second equation. And then now phosphorus P4 that is in solid state reacts with oxygen to form phosphorus pentaoxide P2O5, or you can write it as P4O10 that is in solid state. This one is the third equation. By saying there are three equations. First one is the combustion of iron, second one is the magnesium, and third one is the phosphorus. Both these are the active metals which reacts with oxygen to form their oxides. And in the case of both the equations, first as well as in second, both are the balanced chemical equation. कैसी है? Both are the balanced chemical equation. Because you can check also that there are the 4 atoms of iron in reactant side. As you know that iron and oxygen are the reactant, whereas iron oxide is the product in the first equation, and we can separate both the reactant as well as product by this arrow. ये arrow जो है क्या इंडिकेट कर रहा है कि arrow के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो reactant है. Both are the reactant, where this one is the product. So arrow के लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं? reactant को लिखते हैं, और राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं. तो so both the equations, first equations indicates the reaction between iron and oxygen, and the second one is indicates that magnesium reacts with oxygen. Both are the balanced equations. Both are the balanced equations. यहाँ देख लीजिए, चेक कर लेते हैं. यहाँ पे देखो आयरन के there are the 4 atoms of iron, and in product side 2 to the 4 there are the 4 atoms of iron, whereas 3 to the 6 atom of oxygen and 3 to the 6. In the reactant side there are the 6 atom of oxygen. In second equation there are the 2 magnesium atoms, there are the 2 magnesium atom, as well as there are the 2 oxygen atom in both sides, reactant as well as in
product. Both are the balanced chemical equation. Whereas in the third case, when phosphorus reacts with oxygen, or you can see the oxidation of phosphorus to form phosphorus pentaoxide, this is not the balanced chemical equation. This is unbalanced. तो बैलेंस करने के लिए क्या बैलेंस नहीं है? देखो phosphorus, there are the 4 atoms of phosphorus, and in reactant side there are also the 4 atoms of phosphorus, but here is the 2 atom of oxygen, whereas here is the 5 atom of oxygen. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी. तो दिस वन इज द नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तब जाकर के ये बैलेंस होगी. लेट्स सी द अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग विद दिस केस. We can check the combustion of ethane also. Combustion of first one is propane. Ethane ले लेते चलो. Combustion of ethane. The chemical formula of ethane is C2H6 plus कंबशन होगा. मीन्स कंबशन में हम क्या कराएंगे? ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, और ऑक्सीजन से क्रिया करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यू हैव अर्लियर रीड दिस द कंबशन इन द टॉपिक ऑफ कार्बोनेट्स प्रॉपर्टीज. कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एल्केन सीरीज C2H6 plus O2 बैलेंस करेंगे. दिस इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर कार्बन के यहाँ 2 एटम है, तो रिएक्टेंट साइड में भी हमें कार्बन के 2 एटम लेने होंगे. ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 3 एटम है, तो बैलेंस करेंगे. यहाँ जाएगा आपका 3. मीन्स वी कैन बैलेंस दिस इक्वेशन इन द स्टेप ऑल्सो. तो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग द कार्बन एटम. ये पहला स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप इज द बैलेंसिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम. बैलेंस द हाइड्रोजन एटम. एंड नाउ इन थर्ड केस बैलेंस द ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम को भी बैलेंस करेंगे. तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे ऑक्सीजन के. रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 2 4 और 3 7. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7/2. हमें कितने चाहिए? 7 एटम चाहिए ऑक्सीजन के, इसलिए 7/2. आप ये देखिए 7/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितने बचे? 7 एटम्स हमारे पास ऑक्सीजन के आ गए. नाउ चूंकि रिएक्शंस जो होती है वो किसमें होती है? होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं होती है. फ्रैक्शन में आ रही है, तो इस 2 को यहाँ क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. तो दैट इज द फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप क्या हो गया? हमें क्या लिखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबको होल नंबर के अंदर हमें पुट करके उसकी फाइनल इक्वेशन को राइट डाउन करना है. तो यहां पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 2C2H6 प्लस 7O2. इट गिव्स, यहां भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 4CO2 प्लस 6H2O. नाउ दिस इज द final balanced equation of the combustion of ethane. Let's see another example, combustion of propane. Combustion of propane, that is formula of propane is C3H8. third derivative of alkane series, C3H8 plus oxygen, and it gives the result of combustion of hydrocarbon is carbon dioxide and water, CO2 plus H2O. Now first step, firstly balance the carbon atom. There are the 3 atoms of carbon, so multiply in reactant side by 3. Now second step, balance the hydrogen atom. There are the 8 hydrogen atom and there are the 2 hydrogen atoms, so multiply by 4 in
reactant side. Now third step, balance the oxygen atom, and there are the 3 to the 6 or 4 10 oxygen atoms, so multiply by 5 in reactant side. Now this is the final balanced equation of the combustion of propane. So by this way we can balance the chemical equations. Now another important thing in the case of chemical equations, that is stoichiometry and stoichiometric calculation. So our next topic is stoichiometry and stoichiometric calculations. Now our topic is stoichiometry. स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री के अंदर। स्टोइकियोमेट्री आपको पता होनी चाहिए इक्वेशंस की, ठीक है जी, बहुत काम आने वाली है आगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर पिछला आपने क्या पढ़ा और आगे आपने ब्लॉड में क्या पढ़ना है, दैट इज द लिंक, ठीक है, जो इंडिकेट करता है आगे 11th में भी काम आएगा और ये आपको 12th में भी बहुत काम आने वाला है। लेट्स सी नाउ स्टोइकियोमेट्री calculations based on the quantitative relationship between the reactants and products are referred as stoichiometry, ठीक है जी। यानी जो कैलकुलेशन आप किसकी करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन और बिटवीन किस किस के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। इस स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब है? द टर्म स्टोइकियोमेट्री इज derived from two Greek words. First one is stoichion, जिसका मतलब होता है एलिमेंट, stoichion, STOCHION, मीनिंग एलिमेंट, ठीक है जी, एंड stoichiometry, और द सेकेंड वर्ड इज मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। मेट्रॉन मीन्स मीजर। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या हो गया, मीजर ऑफ एलिमेंट। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल कैलकुलेशंस, द फॉलोइंग स्टेप्स इन जनरल आर क्वाइट हेल्पफुल। कुछ स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला स्टेप है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो सबसे पहला नियम है कि हमें उसकी इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द केमिकल इक्वेशंस राइट द मोलर रेशियो बिटवीन द गिवन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस। और हमें उनकी क्या पता होनी चाहिए, मोलर रेशियो पता होनी चाहिए अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज कन्वर्ट दीज मोल्स इनटू द डिजायर्ड पैरामीटर्स सच एज मास और वॉल्यूम। और हमें वो जो मोलर वैल्यू आई है, मोल्स आए हैं, तो हमें डिजायर्ड पैरामीटर्स के अंदर जो कुछ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, उसके अंदर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एंड एज यू नो दैट इफ यू हैव मास और वॉल्यूम, अगर आपके पास मास भी है और आपके पास वॉल्यूम भी है, तो इट रेफर्ड एज डेंसिटी। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास और वॉल्यूम के जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज द कंबशन ऑफ मीथेन। नाउ लेट्स सी द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, इसका कंबशन करते हैं, ठीक है जी। स्टेट भी यहां शो करना जरूरी है कि कौन सी गैस किस स्टेट के अंदर पाई जाती है। देखिए CH4+O2 दैट गिव्स, अभी बताया हाइड्रोकार्बन को आप कंबशन करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, दैट इज इन गैसियस स्टेट, और वाटर भी
इसमें है गैसेस स्टेट के अंदर है। तो इसको बैलेंस कर लें सबसे पहले, CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। देखिए कार्बन का एक एटम, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 और 2 और 2 4। तो दिस वन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन। यहां पर हमें क्या करना है, यू कैन सी दैट 1 मोल ऑफ, यहां पर क्या है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल मीथेन किससे क्रिया कर रही है, 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, और मिलता क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 2 मोल किसके मिलते हैं, वाटर के मिलते हैं। ठीक है, आप यहां पर क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को यदि आपने एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, बताना है, तो आप यहां ये बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। एंड और क्या कह सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide or 2 molecule of water। और आप क्या कह सकते हैं, that is 22.4 और लीटर ऑफ मीथेन। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद, यहां पर कितना है, 2 मोल, तो ये हो जाएगा आपका 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 44 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44 लीटर ऑफ वाटर। क्या बनता है, ये क्रिया करते हैं कहां पर, ये क्रिया कहां हो रही है, दैट इज एट STP। STP स्टैंड फॉर, बार बार केमिस्ट्री के अंदर इस वर्ड को पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी, और यू कैन से दैट 16 ग्राम ऑफ मीथेन, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 32 दूनी 64, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी इस इक्वेशन के अंदर 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके और क्या बनाती है, कार्बन का 12, 16 32 और 12 44, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ क्या मिलता है, वाटर H2। ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, लास्ट इज कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड के द्वारा हम क्या निकालेंगे, अप्लाई करके इसका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, देखिए अभी स्टोइकियोमेट्री क्या है, यानी अभी आपको समझ नहीं आया, मैं क्वेश्चन में फिर बताता हूं आपको कि मीथेन दैट इज 4 और कितने से क्रिया करता है, 2O2, दैट इज इन गैसियस स्टेट। तो देखो यहां पर जो स्टोइकियोमेट्री है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहां है 1, ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री है 2, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री है 1 और वाटर की स्टोइकियोमेट्री है 2। यानी अब तक बैलेंस करने के लिए जिस नंबर को आप प्रयोग करते थे, ठीक है, अब से पहले आपको पता नहीं कि ये स्टोइकियोमेट्री क्या है। ठीक है, तो यही जो नंबर है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या याद रखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मीथेन या पर्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1, यहाँ क्या लगा हुआ है 2, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है और वाटर का 2 है। लेट्स सी ए न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत पूछी जाती है। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद
0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड वाटर। यानी क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आपको चाहिए क्या बनाने के लिए, कितने से क्रिया करने के लिए, 0.200 ग्राम। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है। मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। या तो वेट कह लीजिए या मास कह लीजिए। वेट दिया हुआ है हाइड्रोजन का, तो वो कहता है कि तो इससे 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, और मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का दिया है 2 और ऑक्सीजन का दिया है 32। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्या बनाता है, वाटर बनाता है। यानी हाइड्रोजन बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2H2 plus O2 it gives water 2H2O। 2 mole of hydrogen, let's see from the equation, 2 mole of water reacts with 1 mole of oxygen to form 2 mole of water। यहां पर देख लीजिए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो इसके नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2, तो 2 टू जा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 60 टू जा 32 ग्राम वाटर ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और क्या मिलता है, वाटर का 36 ग्राम मिलता है। तो बस यूनिटरी मेथड आपने क्लास 6 के अंदर से आप यूनिटरी मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपसे यहां लिख देंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर होती है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 32 ग्राम की। आप यहां देख सकते हैं 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन यूज हो रही है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लग रही है, तब जाकर के हमें क्या मिल रहा है, 36 ग्राम वाटर मिल रहा है। तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन लग रही है और 32 ग्राम की ऑक्सीजन लग रही है, तो अगर 0.200 ग्राम हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीजन कितनी होगी, तो 32 क्या कर देंगे, 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 0.200, 4 से कट जाएगा 8 टाइम्स, 4 8 32, 8 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 1.6 ग्राम। यानी हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अब उस 4 ग्राम से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, अभी यहां देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही थी और वाटर मिल रहा है कितना, 36 ग्राम। 4 ग्राम से वाटर मिल रहा है 36 ग्राम तक। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर 36 ग्राम। तो 0.200 ग्राम क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो उससे कितना मिलेगा, बहुत सिंपल है, 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 0.200, 4 9 जा 36। यानी अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा कितनी लेते हो, 0.200 ग्राम लेते हो, तो आपको कितना मिलेगा, 1.8 ग्राम वाटर मिलेगा। क्लियर, ये हो गया यहां आपका स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस लिमिटिंग रिएजेंट जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, देन उसके बाद होगा अपना रिएक्शंस इन सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म। ये 2 टॉपिक अभी आपके इस चैप्टर के अंदर रह रहे हैं। तो कल जियोमीट क्लास के थ्रू ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म भी है। आप उन सबको अपनी पेन नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तब हम कल जियोमीट के थ्रू लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें। उसके बाद यदि डाउट बनता है तो उसको आप अपने डाउट को अपने अंदर तक ना रहने दें, क्लियर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।